are enjoying this evening. You may have evening tea, evening snacks, and let's continue with the topic. We are discussing with chemical equilibrium, right? So, is there any difficulty to anyone amongst you till date what we have discussed here in the chapter called chemical equilibrium? Is there any difficulty, doubt to anyone? Yes, please. Okay. So, till date it's not. Okay, done. When we are talking about chemical equilibrium, it reminds us about the balance. It is a kind of balance. Equilibrium is a kind of balance which is needed in life. It is needed in thinking. It is needed in behavior. It is needed in science. It is needed everywhere. And the one type is amongst, or one type is nothing but you can say chemical equilibrium. So you may be a bit surprised with this presentation because how it is necessary in life, how it is necessary in thinking. We have both kind of thinking. We have positive thinking, we have negative thinking. Sometimes we may think more negatively, sometimes we may think more positively. Balance of both things is necessary. Naturally, it comes sometimes negative, positive, but we should move it towards the positive thinking. And that is nothing but a kind of balance. So equilibrium is like that. When we are talking about the chemical equilibrium, it is the equilibrium of chemical reactions related with the chemical reactions. We are saying there are two types of chemical reactions. Number one is, you can say here, irreversible reaction. And second, what we are seeing is a reversible chemical reaction. Reversible reaction is a reaction in which reactant react to form product, in turn product form reactants again. And that is called a reversible reaction, which proceeds in both the direction, forward as well as reverse reaction. But when we talk about the irreversible reaction, that proceeds in only one direction. Reactant gets converted to product. In turn, product do not form reactant again. And that is called, you can say, irreversible reaction, which proceeds in only one direction. एक ही direction में चलता है, that is called, you can say, irreversible reaction. That is what we have seen here in last lecture. Also, we have seen that is equilibrium. We have seen there are two types of equilibrium. There is a physical equilibrium, there is a chemical equilibrium. So physical equilibrium is a kind of equilibrium in which the equilibrium lies between the two phases of the same substance. And that is nothing but the physical equilibrium. We have seen the equilibrium between liquid and gaseous phase, that is vapor phase, then solid and liquid phase, solid and gaseous phase, the Camper, what we have seen here in this one. Furthermore, also we have seen that is chemical equilibrium. So yesterday we have seen the example of chemical equilibrium, and here in the chapter we are dealing with a reversible reaction, not with the irreversible reaction. So that's why it has to be very clear. So in reversible reaction, reactant react to form product. In turn, product forms reactant again. So हमने कई सारे एग्जांपल देखे. कल हमने N2O4 का एग्जांपल देखा हमने, as well as हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, and ammonia decompose to form nitrogen and hydrogen. So these kind of reactions also what we are seeing. ये हम लोग डिस्कस करते देखते हैं. ठीक है. Now कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, उस टॉपिक के हिसाब से हमने कुछ पॉइंट वहां पे डिस्कस कर दिए. नो डाउट एट ऑल. जहाँ पे हमने ये देखा कि इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, कल का टॉपिक मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जस्ट रिकॉल कर रहे हैं हम लोग ताकि हम आगे अच्छी तरह जाए. अब देखिए कल शायद हमने ये रिएक्शन किया था, दैट इज N2O4 gives you that is NO2, twice NO2. So this is the forward reaction, and you can say this NO2 decompose to produce again N2O4, that is again reverse reaction. या फिर backward reaction you can see here. So being this is the reversible reaction, this is forward reaction, and this you can say reverse reaction. और इसका हमने graphical representation कर हमने देखा था here you can say like this one here. So this is the conservation of this reactant. हमारे पास शुरुआत में सिर्फ reactant होता है, product नहीं होता है, product बाद में तैयार होगा. So N2O4 का concentration बहुत ज़्यादा है, तो this concentration decreases with the time, and its concentration increases with the time. We have seen. And the rate of reaction depends upon the concentration. आज के टॉपिक में ये डिस्कस करने वाले हैं. So this is you can say N2O4 का ग्राफ है, this you can say NO2 का ग्राफ है, twice NO का ग्राफ है, goes ahead. So here rate of forward reaction is directly proportional to you can say K into concentration of N2O4. वो कैसे आता है ये अभी नहीं समझेगा, आप इतना ध्यान रखिए कि this is the rate of forward reaction. या फिर हम लोग सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं कि this is rate of forward reaction which decreases with time, and this is the rate of reverse reaction. Reverse reaction या RB, backward reaction you can say, rate of backward reaction. So this is the rate of forward reaction, this is the rate of reverse reaction. As we know very well, initially concentration of reactant is higher and concentration of product is lower.
So the rate of reaction depends upon the concentration. Being initially concentration of this reactant is higher, with the time this concentration decreases and this concentration increases. So होता क्या है कि इसका concentration ज्यादा है तो reaction का rate भी ज्यादा रहेगा, और इसका concentration कम है तो reaction का rate भी कम रहेगा. तो starting में इस reaction का rate ज्यादा होता है और इस reaction का rate कम होता है जो बढ़ते जाता है. So इसका rate slow होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इसका rate बढ़ता जाएगा. This is the moment. Here onwards both rate becomes equal. That is, you can say rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. Both rate beyond this point is obtained, and this beyond this point is called as an equilibrium. Beyond this point, it's called as an equilibrium is attained in this reaction, and this is being a reversible reaction. Equilibrium is only attained in a reversible reaction. That is what we have seen yesterday. So देखिए reaction तो है ही है. Reaction के अंदर reactant है, product है, reactant का concentration है, product का concentration भी है, लेकिन equilibrium, chemical equilibrium is defined in terms of rate of chemical reaction. तो हम जो topic discuss कर रहे हैं nothing but the chemical equilibrium. Chemical equilibrium. So this is the chemical equilibrium you can see here. So in this reaction, chemical equilibrium is defined in terms of rate of chemical reaction. अगर हम लोग rate के साथ deal नहीं करेंगे, define नहीं करेंगे, तो chemical equilibrium सही तरीके से define नहीं कर पाएंगे. So इसलिए हम लोग कह सकते हैं chemical equilibrium is equilibrium in which rate of forward reaction becomes equal to rate of reaction, या rate of reverse reaction, या backward reaction. So this is the state. इसके अंदर देखिए ये forward reaction है. N2O4 का breakdown NO2 में ये forward reaction है, और NO2 का वापस इसमें कन्वर्जन होगा, ये reverse reaction, reversible reaction है ना, दोनों कन्वर्ट होता है. So जिस मोमेंट पे किसी भी reversible reaction में जिस मोमेंट पे rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction, that state is called a state of chemical equilibrium. So hope everyone got it. Equilibrium, chemical equilibrium has to be defined here in this format only. Rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction. That state is called a state of chemical. Now, एक बार equilibrium आ गया reaction के अंदर, so there are some characteristics. मतलब there are some characteristics of this chemical equilibrium. Chemical equilibrium की भी कुछ characteristics है. वो characteristics state के साथ जाना जाता है. वो क्या है? So हमने ये देखा कि सबसे पहले characteristics है, that is nothing but you can say concentration. CON C raised to N, concentration. When equilibrium is attained, whenever equilibrium is attained, at that time concentration of reactant and product remain constant. Concentration जो है दोनों का भी constant रहता है. एक बार equilibrium आया तो ना reactant का concentration बदलता है ना product का concentration बदलेगा, because equilibrium आ चुका है. So equilibrium के बाद इस reaction का rate और इस reaction का rate similar है. आप याद रखिएगा, दोनों रिएक्शन का रेट सिमिलर है. इसका एक मॉलिक्यूल इधर चला जाता है तो इमीडिएट इसका एक मॉलिक्यूल इधर चला जाएगा. दोनों का रेट सेम है ना, दोनों का रेट सेम है, और दोनों का रेट सेम होने के कारण जैसा एक मॉलिक्यूल इसका इधर चला जाएगा, इसका भी एक मॉलिक्यूल इस तरफ चला आएगा. दैट्स व्हाई इसका कंसंट्रेशन जो भी है वो कांस्टेंट रहेगा, व्हाटएवर इज दैट. सो दैट्स व्हाई concentration of reactant and product remains constant after equilibrium. Once equilibrium is attained, there is no change in concentration of reactant or product, किसी का भी चेंज नहीं होता है. दूसरा, at equilibrium rate of forward reaction must be equal to rate of backward reaction. होना ही होना है, तभी तो उसे हम लोग equilibrium कहते हैं. So at equilibrium rate of forward reaction must be equal to rate of backward reaction or reverse reaction. दोनों reaction का rate equal होना ही होना है. अगर वो equal नहीं है, so this is not the equilibrium state. This is not the equilibrium state. So in that sense, what we can say here, so this is the equilibrium state. Fourth, at equilibrium, equilibrium is attained as early as possible. Equilibrium is attained as early as possible. So you can say as early as possible. मतलब अगर हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और इस रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में कंडक्ट करते हैं, मतलब मींस क्लोज कंटेनर में हम लोग कंडक्ट करते हैं. सो दिस इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एज अर्ली एज पॉसिबल. Equilibrium is attained as early as possible, and this equilibrium is not affected by temperature or pressure phenomena. Equilibrium is not attained by temperature pressure phenomena. देखिए इस रिएक्शन का टेंपरेचर चाहे हम लोग थोड़ा कम करें चाहे ज्यादा करें, उस हिसाब से वो मैटर नहीं करेगा. ओके, सो अभी टेम्परेचर के ऊपर इंपैक्ट करता है, वो आगे इसमें देखेंगे. बट दिस आर द मेजर तीसरा पॉइंट. फोर्थ वाला पॉइंट है, दैट इज यू कैन से both reactant and products are present at equilibrium. Whenever equilibrium is attained, both reactant and products are present. ऐसा नहीं होगा कि only reactant वहां पे present है, ऐसा नहीं होगा कि only product वहां पे present है. Whenever equilibrium is attained in any of the chemical reaction, at that time both reactant and products are present here. Reactant and product दोनों भी वहां पे present होते हैं. That state is nothing but the state of chemical.
equilibrium. So this is what we have seen yesterday. वापस उसको मैंने आज किया क्योंकि आगे का टॉपिक उसी के ऊपर बेस्ड है हमारा, समझ रहे हैं आप लोग? So in that sense you can say yeah. So what is chemical equilibrium? Chemical equilibrium is a state of reaction at which rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction, and that state is always state of chemical equilibrium. What are the characteristics of this equilibrium? Equilibrium आने के बाद उसकी क्या खासियत है, क्या characteristics है? So all these are the characteristics. Number one, at equilibrium both reactant and products are present. ऐसा कभी नहीं होगा सारा reactant product में convert हुआ या सारा product reactant में convert हुआ. It never happens. Reactant and products both are present when equilibrium is attained. Then whatever the concentration of reactant and product, that concentration is maintained constant. This concentration also do not changes once equilibrium is attained. So that is also very important. Then rate of forward reaction must be equal to rate of backward reaction. This itself is an important definition. That's why this is also one of the important characteristics. So at equilibrium, rate of forward reaction must be equal to rate of reverse reaction. And equilibrium is attained as early as possible. जितना हो सके उतना जल्दी इक्विलिब्रियम आता है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, ये भी उसकी एक खासियत है. दैट इज आल्सो वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस केमिकल इक्विलिब्रियम. गॉट इट? सो जाते जाते एक पॉइंट हमारे बुक के अंदर नहीं है बट इसी के साथ जुड़ा हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा. दैट इज यू कैन से डायनामिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. व्हाट इज डायनामिक नेचर? से कहा जाता है कि डायनामिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. सो डायनामिक नेचर, व्हाट इज दिस डायनामिक नेचर ऑफ दिस केमिकल इक्विलिब्रियम? होता क्या, देखिए हमने केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है वो देखा, हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे. once chemical equilibrium is attained, at that time what happens? There is no change in concentration of reactant and product. So that's why it appears that reaction is been stopped. हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है इसके अंदर, क्योंकि ना ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना इसमें कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि रेट इक्वल है, इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदल रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदल रहा है. तो वी फील दैट दिस रिएक्शन इज बीन स्टॉप. ये रिएक्शन अभी नहीं हो रहा है ना. जैसे कि अभी फिलहाल में हमें लगता है कि अभी अनलॉक प्रोसेस शुरू हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, और हमें लगता है कि अभी कोरोना का है. बहुत सारे लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं बिकॉज़ दे डोंट नो द साइंस, दे डोंट बिलीव इन द साइंस, इवन दे डोंट नो, दे डोंट बिलीव इन द साइंस. इट हैपेंस. दैट्स व्हाई काफी लोग आजकल मार्केट में मिलते हैं मुझे कि यार अभी क्या कहां किधर है कोरोना वगैरह, इस टाइप का होता है. इवन मेरा खुद का पर्सनली जब मैं मार्केट में किसी चीज के लिए लाने जाता हूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो झगड़ा किसी के साथ होता रहता है, बिकॉज़ आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस. मैं जब सामने वाला कहता है भाई आप मास्क लगा दो, तो वो कहता है कुछ नहीं होता है क्योंकि कहाँ है कोरोना. दिस टाइप ऑफ एक परसेप्शन लोगों का होता है. मुझे लगता है गलत है ना. साइंस जानते हैं हम लोग, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, इतने सारे साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं कि देयर इज अ कोरोना, और कोरोना के कुछ साइड इफेक्ट भी सामने आते हैं. कोरोना के सिम्टम्स अलग है काफी दूसरे और बाकी सब यही सबसे. तो ये जिस टाइप का फिर है कि नहीं कोरोना एक्चुअली एग्जिस्ट है. कोरोना एग्जिस्ट जब होगा तब पता चलेगा. वो कॉन्टेमिनेशन होना जरूरी है, वो ड्रॉपलेट के साथ हमारा कॉन्टेक्ट आना जरूरी है, तब जाके पता चलेगा क्या है कोरोना. तो लगता है कि कोरोना खत्म हुआ लेकिन कोरोना है. उसी तरीके से यहाँ पे होता है, लगता है कि रिएक्शन स्टॉप है, रिएक्शन स्टॉप है, ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है. दिस रिएक्शन इज गोइंग ऑन, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं. दोनों रिएक्शन चल रहे हैं, दोनों रिएक्शन इक्वल स्पीड से चल रहे हैं, और इसलिए लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है. दिस नेचर इज कॉल्ड एज डायनामिक नेचर. एक्चुअली रिएक्शन अपीयर्स टू बी स्टॉप, but reaction never stops. It continues with equal and opposite speed, and that is nothing but you can say dynamic nature of chemical equilibrium. So समझ रहे हैं आप लोग? That is called the dynamic nature of chemical equilibrium. दूसरा इसका एग्जांपल देना चाहूंगा. देखिए मैं इस पेन के ऊपर में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों तरफ से मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, है ना, और मैं दोनों तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई करता हूँ. अब ये चीज ना इस तरफ मूव हो रही है ना इस तरफ मूव हो रही है, तो आप बोलेंगे क्या सर आप सिर्फ नाटक तो कर रहे हैं, दोनों तरफ से थोड़ी फोर्स लगा रहे हो. अरे दोनों तरफ से मैंने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया, तो ये ना इस तरफ मूव करेगा ना इस तरफ मूव करेगा, बिकॉज इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन लगा है. उसी तरीके से यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी चल रहा है, दोनों रिएक्शन का रेट सेम है, तो ऐसा लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, रिएक्शन इज बीन स्टॉप्ड, बट ऐसा नहीं, रिएक्शन ऑलरेडी कंटिन्यू है. फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है, रिवर्स रिएक्शन भी चल रहा है, लेकिन दोनों रिएक्शंस equal and opposite speed में चल रहे हैं. That's why that appears to be stopped, but it never stops. Reactions are continuing, reactions are going on, and this nature is called a dynamic nature of chemical equilibrium. इसका जाते जाते कई जी नीट के अंदर आपको आएगा, इसलिए मैंने ये बता दिया है. एक्चुअली हमारे बुक के अंदर वो अभी कंटेंट है नहीं है. So that is all. That's all for the chemical equilibrium. Clear with this? So यहाँ तक हमने कल के लेक्चर में देखा था. अभी हम लोग चलते हैं आज का टॉपिक हमारा जो डिस्कस करना है, it's called law of mass action. So let's move to the law of mass action. पर तुम्हें से जिन लोग जो ये केमिकल इक्विलिब्रियम समझ लिया, उन्हें आगे अभी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी. ठीक है. सो वी हैव हियर विथ लॉ ऑफ मास एक्शन.
ओके, लॉ ऑफ मास एक्शन ये है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, N2 plus thrice H2 produces twice NH3. Okay, ये reaction. Hope you are able to see the reaction on the board. Nitrogen reacts with hydrogen to produce ammonia, and this reaction is a reversible reaction. तो दो रिएक्टेंट है हमारे, यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे दो रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, दिस इज यू कैन से फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड ये जो आ रहा है दिस इज नथिंग बट रिवर्स रिएक्शन. ओके, या फिर बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं, समझिएगा. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉ ऑफ मास एक्शन, कुछ साइंटिस्ट के दिमाग में सवाल आया जो आज की तारीख में एक्चुअली सॉल्व है, हम जानते हैं अच्छी तरह, लेकिन 18th सेंचुरी की बात करें हम लोग, 18th सेंचुरी में सवाल आया कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर अमोनिया तैयार होता है. ये तो बात है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होता है, लेकिन दोनों का एक दूसरे के साथ रिएक्ट होने का रेट और दोनों रिएक्ट होके प्रोडक्ट तैयार होने का रेट, क्या वो सिमिलर है या डिफरेंट है? सिमिलर डिफरेंट है, मतलब समझिएगा आप लोग, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कितने स्पीड में रिएक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कितने स्पीड में रिएक्ट हो रहा है, और दोनों रिएक्ट होकर प्रोडक्ट कितने स्पीड में तैयार हो रहा है, ये अलग अलग बात है. जैसे कि मानो कि दो लोग हैं और दो लोगों में बॉक्सिंग चल रही है, शायद कभी आपने एक मैच देखा होगा, बॉक्सिंग वगैरह है, टीवी पे वगैरह देखा होगा, WWF आपने देखा होगा. तो मानो बॉक्सिंग चल रहा है और दोनों प्लेयर पंच मार रहे हैं एक दूसरे को जोर जोर से पंच मार रहे हैं, ठीक है. तो अभी होता क्या है कि दोनों बॉक्सर, किसी का पंच मारने का रेट थोड़ा ज्यादा होता है, किसी का पंच मारने का रेट थोड़ा कम होता है ना. कभी कभी एक दूसरा 4-5 पंच लगाता है, लेकिन सामने वाला एक ही पंच लगा देता है, लेकिन जोर का लगा देता है, या फिर परफेक्ट लगा देता है, लाइक दैट, इस टाइप होता है ना. सो भले ही वहां पे दो प्लेयर बॉक्सिंग कर रहे हैं, लेकिन दोनों का पंचिंग का रेट अलग अलग हो सकता है. उसी तरीके से यहाँ पे ना कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होने का रेट क्या है, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होने का रेट क्या है, और दोनों प्रोडक्ट तैयार होने का रेट क्या है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है. ये सवाल साइंटिस्ट के सामने आया. दैट वाज द बिग क्वेश्चन बिफोर द साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट ने इसी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और एक सवाल करके साइंटिस्ट के सामने आया. एंड देन दे कम्स टू नो दैट कि हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होने का रेट अलग है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होने का रेट अलग है, और दोनों रिएक्ट के प्रोडक्ट तैयार होने का रेट अलग है, रेट अलग है ना. जैसे हम भी अभी पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे मेरे सामने भी है 30-35 बच्चे हैं, है ना. सवाल ये है कि सिखा तो मैं सबको रहा हूँ, कुछ लोगों को बहुत जल्दी ग्रास्पिंग होता है, कुछ लोगों को थोड़ा स्लो ग्रास्पिंग हो सकता है, कुछ लोग शायद ध्यान ही नहीं देते होंगे. इट मे हैपेंस, इट हैपेंस, दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती है ना. सो कुछ लोगों को जैसे मैं बताऊंगा पहले स्टेटमेंट में ही कॉन्सेप्ट समझ में आता है, पहली बार एक्सप्लेन करूंगा समझ में आता है, कुछ लोगों को थोड़ा अलग तरीके से समझाऊंगा तभी समझ में आएगा. सो देयर आर मेनी केसेस वी कैन हैव हियर. उसी तरीके से है यहाँ पे कि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होने का रेट अलग है, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होने का अलग रेट है, और दोनों रिएक्ट होकर प्रोडक्ट रेट तैयार होने का रेट अलग है. ये किस चीज के ऊपर डिपेंड है? दैट वाज द बेसिक क्वेश्चन आस्क्ड बाय द साइंटिस्ट. ऑन व्हिच फैक्टर does this depends? The reacting rate of hydrogen depends upon what? Reacting rate of nitrogen depends upon what? And the rate of reaction depends upon what? And they comes to know this is nothing but you can say active mass. That is nothing but the active mass. तो उन्होंने कहा कि this is you can say reacting rate of nitrogen is directly proportional to active mass of nitrogen. Active mass of N2 करता हूं मैं, चलेगा. Then दूसरा reacting rate of hydrogen is directly proportional to active mass of hydrogen. अभी ऐसा होता है. So देखिए, reacting rate of nitrogen is directly proportional to active mass of hydrogen, and reacting rate of hydrogen is directly proportional to active mass of hydrogen. ऐसा होता है. तो नाइट्रोजन का जो रिएक्टिंग रेट है उसके एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करता है, एंड हाइड्रोजन का जो रिएक्टिंग रेट है उसके एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करता है. वो एक्टिव मास है क्या? एंड दिस एक्टिव मास इज नथिंग बट द, आज की तारीख में दिस एक्टिव मास इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन टर्म, जिसे हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं. सो इसका मतलब रिएक्टिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. सो यू कैन से रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टर्म. किसी भी सब्सटेंस का 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने जिसे एक्टिव मास कहा उसे आज की तारीख में हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं. तो वी आर वेरी क्लियर विद दिस पार्ट. रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. तो रिएक्टिंग रेट ऑफ नाइट्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन. रिएक्टिंग रेट ऑफ हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन. किसी भी सब्सटेंस का रिएक्टिंग रेट उसके एक्टिव मास के ऊपर यानी कि उसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है. दिस इज द कांसेप्ट व्हिच इज गिवन बाय दिस लॉ ऑफ मास एक्शन.
लॉ ऑफ मास एक्शन. दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट कि किसी भी सब्सटेंस का रिएक्टिंग रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उनके एक्टिव मास के ऊपर. जिस एक्टिव मास को आज की तारीख में हम लोग कॉन्संट्रेशन कहते हैं, 18th सेंचुरी में उसे एक्टिव मास कहा गया था. सब समझ रहे सब लोग. सो दिस इज व्हाट वी कैन से हियर. सो फाइनली नाइट्रोजन का रिएक्टिंग रेट उसके कॉन्संट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, हाइड्रोजन का रिएक्टिंग रेट उसके कॉन्संट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और रिएक्शन का रेट दोनों रिएक्टेंट के कॉन्संट्रेशन के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मास एक्शन. ओके, सो वी कैन से rate of reaction okay, rate of reaction is directly proportional to concentration of nitrogen and concentration of hydrogen. ये दोनों का प्रोडक्ट. दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ, ये स्टेटमेंट है, एग्जाम आता है क्या पूछा जाएगा. सो व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactants raised to suitable power, या फिर the rate of chemical reaction is directly proportional to concentration product of all the reactants involved in a chemical reaction, isn't it? So rate of reaction is directly proportional to concentration product of all reactants involved in a chemical reaction. Product का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है. देखिए प्रोडक्ट दो बार आता है. एक प्रोडक्ट मतलब जो रिएक्शन में तैयार होने वाला सब्सटेंस है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है, और दूसरा जो प्रोडक्ट हम बोलते हैं वो मैथ्स में जिसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. तो यहाँ पे ये है कि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है. तो इसलिए मैं जैसे दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं. आपके बुकिश लैंग्वेज में करना है तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration product of all reactant in all chemical reaction, या फिर the product of concentration of all reactant in all in chemical reaction. इस तरीके से होता है. So that is what we can say rate of chemical reaction, that is you can say law of mass action. This called law of mass action. ठीक है. अभी रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, जाते जाते वो एक टॉपिक आता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा देखा है उसको. तो वील सी व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन. हाँ, ये 12th में भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखते हैं. सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. तो मैंने कल लिया था रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, ऐसा आता है. सो रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस. किसी भी रिएक्शन का रेट ऐसा दिखता है, देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन. अभी कंसंट्रेशन किसका होता है, रिएक्टेंट का होता है. कंसंट्रेशन किसका होता है, प्रोडक्ट का होता है. व्हाटएवर दैट, जो भी है वो इस तरीके से होता है. सो व्हाटएवर द कंसंट्रेशन उसका चेंज है यहाँ पे, एंड दैट इज यू कैन से टाइम यहाँ पे. तो इसे ऐसा भी लिखा जाता है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा मैं ज्यादा एक्सप्लोर करता हूँ, आपके बुक के अंदर ज्यादा नहीं है. सो अब देखिए ना कि हमारे पास अगर ये रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन. नाइट्रोजन का पहले, नाइट्रोजन का बाद का कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ N2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनिशियल N2 फाइनल. तो हम ऐसा लेते हैं, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 लाइक दिस वन अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसा आता है. एंड दैट इज माइनस बीइंग इट्स रिएक्टेंट हियर. और ये भी वापस है, दैट इज यू कैन से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम. इस तरीके से लिखा जाता है. सी दिस इज द वे हाउ वी कैन राइट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऐसा है, चेंज इन कंसंट्रेशन यूनिट टाइम या चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो अगर हम लोग इस रिएक्शन की बात करते हैं, इस रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन का देखिए नाइट्रोजन का रेट भी, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन चेंज होने वाला है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन चेंज होने वाला है, अमोनिया का कंसंट्रेशन चेंज होने वाला है. कोई भी आप कंसीडर कीजिए आप लोग, तो हम रिएक्शन का रेट नाइट्रोजन के फॉर्मेट में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, हाइड्रोजन के फॉर्म में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, और अमोनिया के फॉर्मेट में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी एक के साथ. क्योंकि रिएक्शन में तीनों इन्वॉल्व है, दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, तो तीनों का कंसंट्रेशन बदलेगा. चेंज इन कंसंट्रेशन, इट इज नॉट सेड डिक्रीज और इंक्रीज. हम जानते हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होने वाला है, हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसका कंसंट्रेशन बढ़ने वाला है, तो वी कैन राइट इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन. That is also what we can say. So this is a definition of what we can say. तो यहाँ पे देखिएगा, ये मैथमेटिकल फॉर्म है जिस तरीके से लिखा जाता है. ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज, मतलब चेंज होता है, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज. तो ये और कंसंट्रेशन टर्म हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है. ये भी एक बात लिखी है, ये जो लिखा जाता है जैसे लिखा जाता है कंसंट्रेशन N2 ऐसा लिखा जाता है, कंसंट्रेशन हाइड्रोजन ऐसा लिखा जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया ऐसा लिखा जाता है. सो और इसे पढ़ा कैसे जाएगा, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन
ये कैसे पढ़ा जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये कैसा पढ़ा जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, concentration of ammonia, like this. So concentration of all the substances is written in square bracket. Chemistry में किसी भी substance का concentration लिखना है तो इस तरीके से लिखा जाता है, square bracket में वो substance लिखना है। और पढ़ा कैसे जाता है, this is the concentration of nitrogen, this is the concentration of hydrogen, this is concentration of ammonia, ऐसा लिखा जाता है, पढ़ा जाता है. So that's why ये जो है this is concentration of nitrogen. So change in concentration of nitrogen upon change in time. Delta T का मतलब change in time. और इसे अगर हम और डिटेल में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, R is equal to here concentration of N2 2 minus concentration of N2 1, या फिर हम बोल सकते हैं final minus initial upon T2 minus T1. ये है. अब देखिए ये तरीका है, ये तरीका है. So नाइट्रोजन का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस नाइट्रोजन का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस T1 टाइम, ऐसा लिखा जाता है. ये बड़ा टाइप मतलब बड़ा तरीका है, इसी छोटा तरीका है, शॉर्टेस्ट वे है हाउ टू राइट दिस केमिकल रिएक्शन. यहाँ पे लिखा हुआ है हमने शॉर्टेस्ट वे. गॉट इट? सो दैट्स व्हाई मैं इसे हटा देता हूं, बट ये याद रखिएगा दिस इज द वे हाउ कैन वी राइट द रिएक्शंस. समझ रहे हैं? सो rate of chemical reaction is given here in this format. Rate of chemical reaction is given here in this format. That is, rate is nothing but the change in concentration upon time taken, change in concentration of hydrogen upon time taken, which is must be equal to change in concentration of ammonia upon time taken. किसी भी एक का concentration change हो रहा है वो दूसरे के equal है. So change in concentration of nitrogen must be equal to change in concentration of hydrogen must be equal to change in concentration of ammonia, उस proportion में. So ये rate of reaction दिया जाता है. और rate of reaction क्यों जरूरी है हमें? Because हम यहाँ पे देखते हैं rate is what? Change in concentration upon time taken. किसके ऊपर डिपेंड करता है? Product of concentration of all reactant in all any chemical reaction. So that is what we can say rate of chemical reaction. So we are here with law of mass action. Law of mass action state क्या करता है? What law of mass action states that? Law of mass action states that rate of chemical reaction is directly proportional to product of concentration of reactant raised to suitable power. Product of concentration of reactant raised to suitable power. ये आगे आएगा कि क्या है ये suitable power, आगे आएगा. But यहाँ तक शायद आपको समझ में आए. और किसी भी रिएक्शन का रेट किस तरीके से लिखा जाता है तो दिस इज द वे हाउ वी कैन राइट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो दिस इज द वे, मतलब इसी रिएक्शन का ये रेट है, इस डेफिनेशन है, ये मैथमेटिकल फॉर्मेट है. और ये मतलब केमिस्ट्री में ये स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा जाता है कॉन्सेंट्रेशन. पढ़ा कैसे जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, इस तरीके से वो पढ़ा जाता है. सो दिस इज द वे हाउ वी कैन राइट इट. क्लियर विद दिस? सो होप एवरीवन गॉट दिस. दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड दिस इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो रेट इस तरीके से लिखा जाता है. Okay, now next is इसी के अंदर हम आएंगे, वापस आ जाता हूं मैं. Okay, अब देखिए यही रिएक्शन कंसीडर करते हैं. That is nitrogen reacts with hydrogen to form ammonia and this is the reversible reaction. ये रिवर्सिबल रिएक्शन. अब देखिए इसके अंदर एक्चुअली दो रिएक्शंस है. इसके अंदर दो रिएक्शंस है. एक रिएक्शन कौन सा है? फॉरवर्ड रिएक्शन है. फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा? ये वाला. तो फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे लिखेंगे? N2 plus thrice H2 gives you twice NH3. This is first reaction. Forward reaction. Is it clear? और दूसरा रिएक्शन कौन सा है हमारा? रिवर्स रिएक्शन या फिर बैकवर्ड रिएक्शन. रिवर्स या फिर बैकवर्ड रिएक्शन. बैकवर्ड रिएक्शन. बैकवर्ड रिएक्शन है क्या? बैकवर्ड रिएक्शन मतलब दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट, क्योंकि इस तरफ आता है, ये रिएक्टेंट बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है. फॉरवर्ड रिएक्शन में दिस आर रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट, और रिवर्स रिएक्शन में दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट. तो रिवर्स रिएक्शन ऐसा है दैट ट्वाइस NH3 गिव्स यू N2 plus thrice H2. दिस इज द सेकंड रिएक्शन. समझ रहे हैं आप लोग? रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये होता है, शायद मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया था, अभी यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये होता है इसके अंदर दो रिएक्शन. एक है फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? N2 plus thrice H2 प्रोड्यूसेस NH3. एरो सिर्फ इस तरफ है, मतलब ये प्रोड्यूसेस NH3 और इसका मतलब है NH3 डिकम्पोज टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन हाइड्रोजन. ये आल्सो उस तरीके से रिएक्शन, मतलब दिस इज आल्सो वन वे रिएक्शन, दिस इज आल्सो वन वे रिएक्शन. बट रिएक्टेंट ये है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, और यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और ये. समझ गए आप लोग? तो इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट मिलेगा और इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट मिलेगा. दोनों रिएक्शन को कंबाइन करते हैं तो ये रिएक्शन है. दो बार कौन रिएक्शन लिखेगा? बेटर है कि हम ऐसा लिखते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज रिवर्स रिएक्शन. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है?
रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑल रिएक्टेंट प्रेजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन. सो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, वी कैन से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए रेट ऑफ दिस फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, इसके ऊपर डिपेंड करता है. कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इसके ऊपर डिपेंड करता है. दिस इज कॉल्ड योर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. एंड दिस इज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. इसका रेट क्या होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में भी लिखता हूं. ओके, RB, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन is directly proportional to this reactant. Reactant एक ही है, that is you can say NH3. इसके ऊपर डिपेंड करता है. Got it? So that is what we can say here. इस तरीके से लिखा जाता है. So this is a rate of forward reaction, this is a rate of reaction. इसे हम लोग अगर जनरलाइज करते हैं, consider a reaction. ये मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल दिया. Consider a reaction, general reaction. A plus B produces C plus D. Okay, C plus D. ऐसा होता है. अब इसके अंदर देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है. पहला, व्हाट इज फॉरवर्ड रिएक्शन? फॉरवर्ड रिएक्शन है A plus B प्रोड्यूसेस C plus D. इसका रेट क्या होगा देन? इस रिएक्शन के अंदर देखिए ये पर्टिकुलर एग्जांपल है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन का. ये जनरल एग्जांपल है, हम जनरल एग्जांपल लेते हैं साइंस के अंदर. A plus B प्रोड्यूसेस C plus D. इसके अंदर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है फॉरवर्ड रिएक्शन में, और रिवर्स रिएक्शन में ये रिएक्टेंट बनेंगे, ये प्रोडक्ट बनेंगे. तो फॉरवर्ड रिएक्शन में दिस आर द रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट. इसका रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सो सिंपली rate of this reaction is directly for this forward reaction. Rate of forward reaction is directly proportional to concentration of A, concentration of B. Is it? ये हम लोगों को मिलेगा. Okay. और दूसरा reverse reaction क्या है इसका? Second you can say what is reverse reaction या backward reaction? Backward reaction is C plus B produces A plus B, and that's why इस reaction का rate क्या होगा? Rate of reaction that is backward reaction is directly proportional to concentration of C into concentration of D. ये आता है, समझ रहे हैं आप लोग? So this is very generalized and this is very specific example. दोनों example यहाँ पे clear होते हैं. दोनों reaction में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क. इस reaction के अंदर देखते हैं तो नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं है. जो कुछ नहीं है that is called as stoichiometric coefficient. That is nothing मतलब equal to 1. जब कुछ नहीं तो 1 होता है. इसके आगे 3 है. So reaction पढ़ने का तरीका होता है ऐसा कि 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia. देखिए रिएक्शन ऐसे पढ़ा जाता है. 1 mole of nitrogen, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है. 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia. इसके आगे 2 है. इसके अंदर देखिए इस रिएक्शन में देखते हैं A के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, B के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है. तो पढ़ेंगे कैसे? 1 mole of A reacts with 1 mole of B, produces 1 mole of C and 1 mole of D. ऐसा हम लोग रिएक्शन को पढ़ते हैं. So ये भी ऐसा पढ़ेंगे 1 mole of A reacts with 1 mole of B, produces 1 mole of C and 1 mole of D. इसे कैसे पढ़ेंगे? 1 mole of C reacts with 1 mole of D, produces 1 mole of A and 1 mole of B. तो ये ऐसा ही रहेगा. इसके अंदर देखिए फर्क है. इसके अंदर फर्क क्या होता है ना, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 है. So मैंने जो कहा था डेफिनेशन के अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन के, law of mass action states that the rate of chemical reaction is directly proportional to product of concentration of reactant raised to suitable power. Raised to suitable power मतलब ये जो 3 है, this 3 goes to power here. ये हाइड्रोजन का 3 हाइड्रोजन के पावर पे चला जाता है. नाइट्रोजन का 1 है, इससे यहाँ पे 1 चला जाएगा. इस रिएक्शन में यहाँ पे 2 है, that goes to power like this one. इस तरीके से चलेगा. So this is you can say particular example. Okay, generalize करते हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं. ये शायद समझ में आ रहा है आपको. मैं जनरलाइज के साथ वापस कर देता हूं आपको दोनों एग्जांपल. ये मैं हटाता हूं और यहाँ पे जनरलाइज एग्जांपल लिखता हूं. दूसरा जिसका पर्टिकुलर एग्जांपल था, ठीक है, ये समझना जरूरी है, टॉपिक अच्छी तरह समझेगा. सो देखिए यहाँ पे भी मैं रिएक्शन इस तरीके से लिख रहा हूं. A moles of A reacts with B moles of B, produces C moles of C plus D moles of D. इसका मतलब देखिए इस रिएक्शन के अंदर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d indicates the number of moles and capital letter indicates the symbol of elements. So this capital letter symbol of elements and small letter number of moles. इसके अंदर दो रिएक्शंस हैं. फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? A moles of A reacts with B moles of B, produces C moles of C plus D moles of D. Applying law of mass action. So here you can say applying law
of mass action जो हमने देखा हुआ है, तो according to law of mass action, this is the forward reaction. इस reaction का जो rate है forward reaction का, that is directly proportional to concentration of a substance raised to suitable power, this small a, this number of mole goes to the power, because उसके ऊपर ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसके a मोल्स है, 2 3 4 5 6 मोल्स हो सकते हैं, और मोल्स बढ़ेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, इसलिए इस तरीके से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a raised to a into concentration of b raised to b. This is the forward reaction. दूसरा, what is backward reaction या फिर रिवर्स रिएक्शन? रिवर्स रिएक्शन इज दस ये C moles of C plus D moles of D produces A moles of A plus B moles of B. Applying law of mass action. Applying law of mass action. Law of mass action के हिसाब से यहाँ पे क्या मिलता है? Rate of this backward reaction, that is reverse reaction, is directly proportional to concentration of C raised to C, concentration of D raised to D. अब देखिए, मैंने वापस बोल रहा हूँ, इस रिएक्शन के अंदर स्मॉल लेटर्स इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मोल्स एंड कैपिटल लेटर इंडिकेट्स द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स. सो ए मोल्स ऑफ ए, जैसे कि मैंने अभी अमोनिया का एग्जांपल दिया था, अमोनिया का एग्जांपल जिसके अंदर नाइट्रोजन के कुछ मोल्स नहीं थे, हाइड्रोजन के 2 मोल्स थे, तो ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी, सी मोल्स ऑफ सी सब्सटेंस रिएक्ट विद डी मोल्स ऑफ डी सब्सटेंस. तो इसलिए जो भी नंबर ऑफ मोल्स पावर पे चले जाते हैं, जो भी नंबर ऑफ मोल्स है वो पावर पे चले जाते हैं, दैट इज नथिंग बट यू कैन से suitable power. तो लॉ ऑफ मास एक्शन उस तरीके से डिजाइन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू सुटेबल पावर. दिस इज व्हाट वी कैन से. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल एंड दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ एग्जांपल. यू कैन से दो अलग-अलग रिएक्शंस है. इस रिएक्शन के अंदर देयर इज नो मोल, ओनली वन मोल इज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड ऑल द प्रोडक्ट. सारे रिएक्टेंट्स के एक ही मोल है, सारे प्रोडक्ट के एक ही मोल है. इस रिएक्शन के अंदर इसके ए मोल्स है, इस ए का वैल्यू कितना होगा? 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है. स्मॉल बी का वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है. तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है उसके वैल्यू 1 2 कुछ भी हो सकता है. सो उसी हिसाब से इसमें नो मोल्स ऑफ, ओनली वन मोल्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर इन्वॉल्वड. इसके अंदर ए मोल्स ऑफ ए, बी मोल्स ऑफ बी, सी मोल्स ऑफ सी, डी मोल्स ऑफ डी आर इन्वॉल्वड. तो इस रिएक्शन में देखिए इसके पावर के ऊपर सिर्फ 1 है, बिकॉज़ इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 है. इनके पावर के ऊपर ए बी सी डी आ चुका है बिकॉज़ उतने नंबर ऑफ मोल्स है. तो किसी भी रिएक्शन में जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनके पावर पे चले जाएंगे. दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन. Also everyone got it? What is law of mass action? Tomorrow we are going to discuss this law of mass action is expressed in terms of chemical equilibrium constant. So see you tomorrow with chemical equilibrium constant. But this has to be very clear. Have a screenshot and revise it. We'll meet tomorrow. Thank you much. Bye bye.